تو گولی جب چلتی ہے تو ہر سائڈ کے لوگ مرتے ہیں، اس میں فوج کے لوگ بھی مرتے ہیں، ہمارے پولیس کے نوجوان بھی مرتے ہیں، اس میں عام کشمیری کی بھی جان جاتی ہے، جنہوں نے پاکستان اور ہندوستان کے بیچ کرکٹ میچ ہوا تھا اور انہوں نے پاکستان کو مبارکباد کہہ دی، ٹھیک ہے، اس پر جیل میں ڈال دیا۔ تو مبارکباد دینے والے تو بی جے پی کے نیتا بھی تھے، مودی جی نے رہبر 2% ووٹ سے رہبر 10% سے نہیں بنتا، رہبر 99% سے نہیں 100% سے بنتا ہے۔ پھر آپ کو احساس آئے گا کہ جو ہمارے بچے ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے علماء حضرات ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں جو جیلوں میں، ہارنا مت، ڈرنا مت، جھکنا مت، بولتے رہنا اور ہمارے لیے بھی بولنا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جذبات 24 اور میں ہوں آپ کے ساتھ شبنم خان۔ ناظرین، ابھی ہماری ٹیم جو ہے ٹنگمرگ میں موجود ہے، جہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی ہے ایک ایسے شخص سے جو کہ آج سرخیوں میں آپ کو چھائے ہوئے دکھیں گے، جو کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کا سواگت کرتے ہیں ہماری جذبات 24 میں۔ سر تھینک یو جی۔ آپ کے شوز ریموو کرنے کا سب سے بڑا سوال ہے وہ یہی ہے، آپ کی شوز ریموو، یعنی 2019 میں آپ جیل میں تھے، آفٹر دیٹ 2020 میں آپ کی یہ شروعات ہوئی، آپ نے اپنے جوتے جو ہیں وہیں پہ نکال کے، تو آپ کی یہ جنگ جو ہے اس کو ہم کہیں گے یہ شروع ہو چکی ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ سے تفصیلاً جاننے کی کوشش کریں گی کہ آخر ایسی وجہ کیا ہے، اور خاص کر آج سردیوں کا موسم ہے، یعنی جہاں پہ آج ہر ایک کشمیری جو ہے 3 4 ساکس لگانے کی کوشش کرتا ہے، وہ بڑے بڑے جوتے لاتے تاکہ ان کے پیروں کی حفاظت ہو، لیکن آپ نے اس چیز کو کبھی بھی نہیں سوچا کہ میں تکلیف میں ہوں اس وقت، کیونکہ ہر کوئی جو ہے اپنے بارے میں یہاں پہ ہر ایک سوچتا ہے، لیکن آپ نے بالکل بھی ایسا نہیں سوچا۔ تو تفصیلاً یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ کہوں یا کہاں سے شروع کروں، کیونکہ شوز کے اوپر میں بات کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ یہ میرا ایک خود کا فیصلہ تھا، اور جب میں بات کرتا ہوں تو پتہ نہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کو پبلسٹی بھی سمجھتے ہیں، ڈرامہ بھی سمجھتے ہوں گے، تو بٹ زیادہ تعداد جموں کشمیر کی وہ بھی ہے جو مجھے پیار دیتی ہے، مجھے اپریشیٹ کرتی ہے، میرے لیے دعا کرتی ہے، اور میں ان کا شکریہ بھی کرتا ہوں۔ آپ نے پوچھا سوال کہ میں نے شوز اتارا، 2019 میں جیل میں گیا، 2020 میں جیل سے باہر آیا اور شوز اتار کے آیا، تو کیوں آیا؟ میں تمام لوگوں کو جو خاص کر آپ کو سنیں گے، واچ کریں گے آپ کے چینل کو، میں ان سے ضرور ایک بات کہوں گا کہ آپ ایک بار وہ تنہائی جی کے دیکھیے جو نہیں گئے، جو فالتو کی بکواس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے کہہ رہا ہوں، جو کسی کو پبلسٹی یا ڈرامہ کہہ دیتے ہیں بنا سوچے سمجھے، تو ان لوگوں سے میں کہوں گا کہ ایک دن رات کی تنہائی بنا فون کے، بنا اچھے بستر کے نکال کے دیکھیے، پھر آپ کو احساس آئے گا کہ جو ہمارے بچے ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے علماء حضرات ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں جو جیلوں میں، بالکل سر، تو آپ کو احساس آ جائے گا کہ جیل آپ کو ایک دن کیا، اور جو بیچارے 2 سال سے 3 سال سے 4 سال سے 10 سال سے یہاں تک کہ ڈاکٹر قاسم صاحب کی بات کریں تو 26 سال، بالکل سر، ٹھیک ہے، 26 سال سے ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان، ہماری ماں بہنیں جیلوں میں ہیں۔ تو اس میں میں نے بھی جیلیں کاٹی ہیں، ایک نہیں 3 بار کاٹی ہیں، 18 میں بھی گیا، 19 میں بھی گیا، 20 میں بھی گیا۔ میں جب جیل میں تھا تو میرے ساتھ بچے تھے کشمیر کے۔ سر سوری، آپ کی بات یہاں پہ کاٹنا چاہوں گی، آپ کو کس بنا پہ جو ہے جیل لیا گیا؟ آپ کا قصور ایسا کیا تھا جو آپ کو جیل میں بند کیا گیا؟ جب سٹارٹنگ میں 2018 میں فرسٹ ٹائم میں جیل گیا تو تب میں نے جموں کشمیر کی ہی بات کی تھی، سوشل میڈیا کے ذریعے بات کرنے کی کوشش کی تھی، اور نئی دلی کو جو مودی صاحب تھے، مودی صاحب کی سرکار تھی، ان سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ جموں کشمیر کے مسئلے کو دل سے حل کریں، ایڈریس کریں اور پاکستان سے بات کریں، کیونکہ جب تک آپ مسئلے کشمیر پہ بات نہیں کریں گے تب تک یہاں گولی نہیں رکے گی، ٹھیک ہے۔ تو گولی جب چلتی ہے تو ہر سائڈ کے لوگ مرتے ہیں، اس میں فوج کے لوگ بھی مرتے ہیں، ہمارے پولیس کے نوجوان بھی مرتے ہیں، اس میں عام کشمیری کی بھی جان جاتی ہے، جو ہتھیار اٹھاتا ہے ہمارا نوجوان کشمیری، اس کی بھی جان جاتی ہے۔ تو کسی کی جان نہ جائے اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ جموں کشمیر مسئلے کو کوئی ایسا حل نکالیں جس سے یہ گولی رک جائے نا۔ تو اس چیز میں مجھے فرسٹ ٹائم دیش دروہ لگایا انہوں نے 2018 میں، اس کے بعد 370 جب ہٹایا، میں دلی میں تھا، میڈیا پہ بول رہا تھا کہ آپ نے غیر
जमहूरी गैर आइनी 370-35 को ख़त्म किया, और वो भी जम्मू कश्मीर की आवाम को जेल बंद करके। दुनिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी जेल अगर जब कोई है तो वो जम्मू कश्मीर थी। 2019 के बाद के इंटरनेट फ़ोन बंद करके घरों में बंद कर दिया, घरों में कैद कर दिया लोगों को। तो हमेशा से मैं टीवी पे एक बोलता था कि दुनिया की सबसे बड़ी जेल जम्मू कश्मीर है। तो उस चीज़ के लिए मैंने जब आवाज़ उठाई नेशनल टीवी पे भी, इंटरनेशनल टीवी पे भी, रोडों पे भी हमने उठाई। तो जब मैं वापस आया जम्मू, रात को रुका, सुबह पुलिस आ गई, तो चलो जी आपको हम लेके चलते हैं जेल में। हम भी चले गए, फिर सटिशन लगा दिया इन्होंने मेरे पे। फिर मैं 6.5 महीने रहा, 6.5 महीने 7 महीने रहा। 2020 अप्रैल में फिर मुझे बेल हुई, जमानत पे बाहर आया मैं। और उस टाइम जो हमारे बच्चे थे कश्मीर के, जो 370 के टाइम अंदर लिए थे इन्होंने, उससे पहले जो अंदर लिए थे, तो उनसे काफ़ी वो प्यार ना मोहब्बत हो गई। एक दूसरे से बैठते थे, उठते थे, तो एक दूसरे के साथ दुख, अंदर तो दुख ही बांट सकते हैं, है ना? तो एक दूसरे का टाइम पास भी करते हैं, और जब किताब पढ़नी हो किताब भी पढ़ लेते हैं। तो उस हालात में एक दूसरे के साथ बहुत इंसान क्लोज हो जाता है। तो उसके साथ रहते हुए जब वो नौजवान बच्चे होते हैं 20 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, तो जब मेरी बेल आई, मेरी एक लेटर आया, जब अंदर मुझे पता चला कि मुझे जमानत मिल गई है, तो उनके चेहरे में, जो हमारे कैदी थे, जो हमारे मजलूम कश्मीरी थे वहाँ अंदर, तो उनके चेहरे में खुशी भी थी और एक तरफ से मायूसी भी थी। तो वो अब मैं उनके चेहरे में पढ़ रहा था कि खुश भी बेचारे हैं और मायूस भी हैं। खुश इसलिए कि चलो शुक्र है वकार भाई जेल से बाहर जा रहा है, मायूसी इसलिए कि हम कब जाएंगे। तो वो मैंने जब उनके चेहरे में देखी, तो मैंने तो फैसला किया कि मैं कुछ ऐसा करूं। और उन्होंने मुझे कहा कि वकार भाई आप जाएंगे बाहर, हारना मत, डरना मत, झुकना मत, बोलते रहना और हमारे लिए भी बोलना, हम भी बाहर आ जाए। तो मैंने उनसे वादा किया कि जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर की मुस्लिम कौम के लिए हमेशा आवाज़ उठाता रहा हूँ, और आवाज़ उठाने के बाद और भी कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा तो वो करूँगा। तो उसके बाद ही मैंने वही जेल से एक फैसला किया कि मैं शूज़ उतार के नंगा इसलिए चलूँगा, नंगे पाँव चलूँगा, जब तक नंगे पाँव चलूँगा जब तक उनकी जेल में जो बच्चे हैं हमारे कश्मीरी, मैं उन बच्चों की बात करूँगा, मैं किसी क्रिमिनल की बात नहीं करूँगा। मैं यहाँ भी क्लियर कर दूँ, किसी मर्डर वाले की बात नहीं करूँगा, किसी रेपिस्ट की बात नहीं करूँगा, किसी ड्रग्स वाले की बात नहीं करूँगा। मैं जो सियासी कैदी हैं हमारे, सियासत के मारे हुए जो लोग हैं हमारे, ठीक है, जो अंदर हैं, उसमें उलमा हैं, उसमें नौजवान हैं, उसमें बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनकी बात करता हूँ, जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनको अपने बेगुनाह जेलों में रखा हुआ है। तो उनके लिए मैंने सोचा कि जब तक उनके अंदर दर्द है, वो एक जो इंसान होता है ना जेल में, मैं कह रहा हूँ जेल में एक नौजवान या बुजुर्ग, उसको इतनी तकलीफ नहीं होती तन्हाई की जितनी उसकी फैमिली को होती है, जितनी उसके परिवार की होती है। क्योंकि परिवार बहुत सफ़र करता है, माँ सफ़र करती है, बाप सफ़र करता है, बच्चे सफ़र करते हैं, बहनें सफ़र करती हैं, भाई सफ़र करते हैं। तो उनके दर्द में शामिल होने के लिए मैंने शूज़ उतारे कि मैं जब तक शूज़ नहीं पहनूंगा, जब तक आप इन चीज़ों के ऊपर भारत की सरकार एड्रेस नहीं करेगी, ह्यूमन राइट वायलेशन जो हो रही है उसको ख़त्म नहीं करेगी, जो हुकूक हैं हमारे कानूनी, लीगली, आइनी, उनको आप बेहतर नहीं करेंगे, काले कानून जो UAPA, PSA, सेडिशन जैसे वापस नहीं लेंगे, यहाँ से हटाएंगे नहीं, और जब तक जेलों से हमारे बच्चों के लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएंगे कि उनको अगर किसी को लगता है कि सरकार को कि इसने जुर्म किया है, इसने देश के खिलाफ बयानबाजी की है या कानून की वायलेशन किया उसने, तो आप क्या करें, 1 महीना रखें, आप 15 दिन रखें, एक टाइम पीरियड रखें, उसमें देखें अगर इस बच्चे ने किया है या नहीं किया। क्योंकि सोशल मीडिया में आकर मैंने लिख लिया, उसकी वजह से आप किसी को 3 महीने 4 महीने जेल या 3-4 साल जेल में नहीं रख सकते। अभी जैसे बच्चे हैं हमारे आगरा में बंद है, जिन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच क्रिकेट मैच हुआ था और उन्होंने पाकिस्तान को मुबारकबाद कह दी, ठीक है, उस पर जेल में डाल दिया। तो मुबारकबाद देने वाले तो बीजेपी के नेता भी थे, मोदी जी ने खुद कांग्रेस किया हुआ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, तो क्या फिर वही कानून मोदी जी के ऊपर लगेगा? तो यहाँ आम मुसलमान, आम कश्मीरियों के लिए कानून अगर लग है, तो प्राइम मिनिस्टर या VIP जो लोग हैं या बिजनेसमैन जो लोग हैं, तो उनके लिए कानून लग है, ये बिल्कुल हम मानने को तैयार नहीं है। तो उसी वजह से मैंने ये शूज़ उतारे थे, और ये कैंपेन हम आगे तक लेके जाएंगे। और मैं खासकर जब तक शूज़ नहीं पहनूंगा, जब तक इन चीज़ों के ऊपर कोई सीरियस होकर सरकार कोई फैसला नहीं करती। हाँ, ये भी मैं जानता हूँ कि आज की जो सरकार है, जो भारत में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, होम मिनिस्टर अमित साहब,
मुझे इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है कि ये हमारे जम्मू कश्मीर को कुछ बेहतर करेंगे। बेहतर करने की जगह ये और जम्मू कश्मीर का कहीं ना कहीं सौदा करेंगे, जैसे अभी यूएई में हुआ था, ठीक है, जैसे एलजी सब गए थे। तो फिर भी विश्वास है अल्लाह पे, क्योंकि हम तो अल्लाह पे यकीन करते हैं, अल्लाह पे भरोसा करते हैं, और हम तो अल्लाह से ही ये मांगते हैं कि आ खुदा कि इनके दिलों में रहम बर जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, और ये अच्छे फैसले कर सके, अच्छे डिसीजन ले सके जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, और बेहतर ज़िंदगी दे सके, और मसले कश्मीर को एड्रेस करें, पाकिस्तान से बात करें, फिर ही जाके कुछ मसले का हल हो सकता है। मैं जिसको रहबर चुनूँ, मेरी आवाम जिसको रहबर चुनेगी ना, वही रहबर होता है। रहबर 2% वोट से, रहबर 10% से नहीं बनता, रहबर 99% से नहीं 100% से बनता है। अगर 1% भी आवाम उस रहबर को अपना रहबर नहीं बनती तो वो रहबर नहीं हो सकता, क्योंकि 100% अगर आवाम एक लीडर को, एक नेता को अपना रहबर मानती है, अपना लीडर मानती है, तो वही लीडर वही रहबर होता है। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान आके यहाँ रूल करे या भारत आके रूल करे, मैं ये कहता हूँ कि हमें अमन दो, हमें पीस दो। हमारी एक मसले कश्मीर में बीच एक लाइन है, उस पार कश्मीर है मेरा। आपने मेरे घर वालों से मुझे ही जुदा कर दिया है, मेरी खुद की, मैं अपनी बात करूंगा, ऐसे तमाम कश्मीरियों के उधर उस पार कश्मीर जो है उसके अपने हैं। ऐसे ही मेरे पापा की बहनें हैं, मेरी बुआ जी हैं, बुआ जी अभी इंतकाल हुआ पिछले रमजान में, उसके पहले ताई जी का, मेरे ताई जी भी हैं, उनका भी इंतकाल हुआ, फिर मेरी एक और बुआ थी उसका भी इंतकाल हुआ। 8 से 10 इंतकाल हुए 2 सालों में, हमारा कोई नहीं जा सका वहाँ, नहीं ना जा सका। हमें क्यों जुदा किया हुआ आप लोगों ने? हम तो कम से कम उनकी खुशियों में शामिल हो सके, उनके दुख में शामिल हो सके, वो हमारे में शामिल हो सके। आप इस लाइन को खत्म कर दीजिए मेहरबानी से, मेरे लिए यही मसला है। आप इस लाइन ऑफ कंट्रोल जो एक तार बिछी है, इसको खत्म कर दीजिए, क्योंकि एक कश्मीरी को दूसरे कश्मीरी से आप जुदा मत करिए, ठीक है? हमको अपने घर से जुदा मत कीजिए। आप रूल करें ना करें, मैं इस चीज पर जाऊंगा ही नहीं। रही ये देश जो भारत देश है, ये भारत देश अम्बेडकर का देश है, ये गांधी का देश है, ये मौलाना आजाद का देश है, ये भगत सिंह, शफाकुल्ला, सुभाष चंद्र बोस का देश है, ये नाथुराम गोडसे का देश नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भारत मेरा नहीं है, ये भी नहीं कहूंगा भारत मेरा नहीं है, क्योंकि भारत में जो भी है वो हर एक मुसलमान ने कुर्बानी दी हुई है, वो उलमा हजरात ने कुर्बानी दी हुई है, वो हमारे फकीर वलियों ने कुर्बानी दी हुई है उसको बनाने के लिए। जाइए पूरे भारत में जो भी बना हुआ है वो हमारा बना हुआ, हमारे हाथों का, हमारे मुसलमान बादशाहों का, राजों का, उन लोगों ने बनाया हुआ। लाल किला की बात करेंगे, ताजमहल की बात करेंगे, ठीक है? हर कोई चीज जहाँ लोग टूरिस्ट आता है वो भारत को बनाने वाला मुसलमान था। तो हम ये कह ही नहीं सकते कि भारत मेरा नहीं, भारत में कहूँगा भारत मेरा है। हाँ, हम ये नहीं कहेंगे कि आप जम्मू कश्मीर की बलि का बकरा बना के, है ना, जम्मू कश्मीर को काट के जम्मू कश्मीर वालों को मारें, आप जुल्म करें, आप ज्यादती करें, आप जेल में डालें, और आप कौन होते हैं हमें सिखाने वाले कि हम क्या हैं क्या नहीं है? आप तो नाथुराम गोडसे वाले लोग हैं, आप तो गांधी को मारने वाले लोग हैं, है ना? आप तो मुसलमानों को गाय पे मारते हैं, आप तो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। आप तो आपसे हमें नहीं सर्टिफिकेट चाहिए, हम क्या हैं क्या नहीं है ये हम जानते हैं। इंडिया और पाकिस्तान जब नहीं थे, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान जब नहीं था, जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर का अपना एक वजूद है, जम्मू कश्मीर एक रियासत थी, जम्मू कश्मीर रियासत है, जम्मू कश्मीर रियासत रहेगी। चाहे तुम कितने भी टुकड़ों में बांट दो, कितनी भी बड़ी शैतानी पॉलिसी इस्तेमाल कर लो जम्मू कश्मीर के ऊपर, वो कभी भी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बस आवाम को एक थी। बिल्कुल सर। तो आप देख रहे थे जज्बात 24, मैं शबनम खान विद कैमरा पर्सन परवेज खान के साथ।